Hello, welcome back, and I still hope you are healthy and wise. So, yesterday we started with Indian economy, Indian people and its economy, and we were on the first chapter, जिसका हमने I guess we completed 1.5 page. So today we will be continuing with that. As I was clear in the last session, if you have any doubt, please feel free to refer it. So, welcome. My name is Prachi Soni. I am from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad, and I am here to teach Geography NCRT class 12th and book 2, that is Human India, People and Economy. This book. So we are on page number 3 right now. That is the density of population. Yesterday we talked about distribution of population. Distribution of population, there is a major difference between distribution and density. जब हम पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि हिंदी में कायदे से देखा जाए तो मतलब थोड़ा थोड़ा मैच करता है. दैट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स दैट हाउ कहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, कहाँ पे बटे कैसे हुए हैं. एंड डेंसिटी अगेन मीन्स कि कहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है लोगों का. बट बहुत एक डिफरेंस होता है. दैट जो डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग जो अनइवन पैटर्न्स ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लोग अलग अलग जगह में कैसे रह रहे हैं. बट इन केस ऑफ डेंसिटी में इट इज़ द डेफिनेशन इज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया. जिसको अगर मैं क्लियर टर्म्स में बोलूँ तो इफ़ दिस इज़ अ पीस ऑफ लैंड एंड अनदर पीस ऑफ लैंड इज दिस. इस पीस ऑफ लैंड पे 20 लोग रहते हैं और इस पीस ऑफ लैंड पे 5 लोग रहते हैं. तो automatically the density of this land is more than compared to the density of this piece of land. High density, low density. Density का मतलब होता है कितना concentration, यानी कि कितना amount of people stay in that particular area. So this density, हमारी country की density is 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर. मतलब अगर आप 1 स्क्वायर किलोमीटर में जाएंगे, नाउ व्हाट इज 1 स्क्वायर किलोमीटर, आप एक पॉइंट पे खड़े हैं और आपके चारों तरफ जब आप 1 स्क्वायर किलोमीटर जाएंगे सो उसको बोलते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर. और इसमें जो डेंसिटी है दैट इज 382 अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच इज सब्जेक्ट टू चेंज इन द अपकमिंग सेंसस. सो एक चीज़ उन्होंने हाईलाइट ये करी है दैट इन द पास्ट हमारा जो ये डेंसिटी है इट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट. दैट वाज 117 था हमारा डेंसिटी इन द ईयर 1951 एंड इट्स 382 इन द ईयर 2011. सो विच मीन्स 200% per square kilometer over the last 50 years has increased. There is a data again back at the back of the book जो clearly आपको इंडिया की सारी स्टेट्स के बीच में जो डिविजन है डेंसिटी का वो क्लियरली बताता है. बट देर आर स्टिल सम स्टेट्स जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है एंड आई वुड पॉइंट आउट दैट दी स्टेट्स in our country the population density ranges from very high to very low, which means there are places which are overpopulated and then there are places which are not just overpopulated. Overpopulation would be a part of distribution, but densely populated मतलब जगह नहीं है आप फिर भी रह रहे हो, जगह है आप रह रहे हो तो आप ओवर पॉपुलेशन में कंसिडर किए जाओगे. जगह नहीं है पर फिर भी आप फंस के रह रहे हो देन इट इज़ कंसिडर्ड एज डेंसली पॉपुलेटेड. सो इंडिया के केस में दोनों ही सिचुएशन है. डेंसली पॉपुलेटेड भी हैं हम और ओवर पॉपुलेटेड भी हैं. बट द डिफरेंस इज ओवर पॉपुलेशन के केस में टॉप में आ जाती है उत्तर प्रदेश, बट डेंसली पॉपुलेटेड के केस में टॉप में आ जाते हैं बिहार. सो द लीस्ट स्टेट की बात हम कर रहे हैं. अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे तो देन इट वुड बी दिल्ली with 11,297 persons in the National Capital Territory region of Delhi. If there is any change in the current data, you might have updated books or probably there is no another census. 2011 census has not yet taken place. So according to 2011 census, this is the correct data. But if there is any change, please update yourselves.
So it ranges from very low in Arunachal Pradesh, that is 17 people, that's it, that in a square kilometer region 17 लोग रहते हैं बस, 17 people in a square kilometer, and compared to Delhi where 11,297 people live in a square kilometer region. Then अगर हम states की बात करें, our top contender, our winner is Bihar with 1102 people, followed by West Bengal, then Uttar Pradesh. Now you have to know that there Uttar Pradesh was at the first place, here it is at the third place. Have higher densities. South India में केरला है काफ़ी high density पे, then Tamil Nadu, then some states like Assam, Gujarat, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, यहाँ का moderate density है, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और बहुत खाली भी नहीं है. Generally जो hilly regions होते हैं और जो हिमालयन regions होते हैं, they are not very populated, they are not very densely populated, and that is why their density is low. So excluding Andaman, Union Territories की भी generally density low होती है, excluding your Andaman and Nicobar and New Delhi, जिनकी density काफ़ी high है. And now two more Union Territories have been added with Jammu, Kashmir and Ladakh. There again, because of the hilly terrain, the density is not very high. Now there is this a little complex concept which is written over here, so I would request you to please pay attention in this, and that is your human-land relationship. As I already explained you that if these are the two pieces of land, and we are actually measuring the number of people living in a particular area. Now imagine दोनों जो ज़मीन के टुकड़े हैं उनका length breadth सब same है, area is same, perimeter is same, but the number of people that are living is different. तो basically density of population क्या बताती है? It tells you the relationship between human beings and land. Human और land के बीच का ratio बताता है ये कि कितने लोग रह रहे हैं एक particular specified area में. और इस ह्यूमन लैंड रेशियो के लिए हम क्या देखते हैं? टोटल कल्टिवेबल लैंड, द फिजियोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेंसिटीज शुड बी फाउंड आउट. ये एक आगे नेक्स्ट पेज पे आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है बाय विच वी फाइंड दैट व्हाट इज अ फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ अ एरिया. फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब ही ये हो गया कि आपकी पॉपुलेशन और ज़मीन कितनी है आपके पास. ज़मीन भी ऐसी नहीं, कल्टिवेबल, आप खाली बंजर ज़मीन पे, पहाड़ी ज़मीन पे कोई रह रहा है तो उसको वो फिर ह्यूमन लैंड डेवलपमेंट उसके हिसाब से देखी जाएगी, दैट हाउ मच अ पर्टिकुलर लैंड कैन एक्चुअली गिव यू. सो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कैसे निकाली जाती है? टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया. इसको ध्यान रखना है. नेट कल्टिवेटेड एरिया क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं 10 लोगों को बंजर ज़मीन पर डाल दूं और 100 लोगों को एक काफ़ी अच्छी एलुवियल सॉइल पर उनको रहने के लिए बोल दूं, देन दीज 100 पीपल इन स्पाइट ऑफ स्टेइंग वेरी क्लोजली टू ईच अदर, दे विल बी हैप्पी, and those 10 people खुले रहेंगे but still they won't be happy because they don't have the resources. The resources is with these 100 people. So physiological density को calculate करने के लिए it is important to have the data of total population and net cultivated area. How to calculate agricultural density? Total agricultural population. Now all those who are fit to do agriculture divided by the net cultivable area. Agricultural population includes cultivators, agricultural laborers and their family members. अब agricultural population में कौन कौन आता है? खेती करने वाले लोग, cultivator, even though labor काम करती है वो, और उनकी families जो भी at the end agriculture पर ही dependent होती हैं. So that is why they are known as agricultural population. Now while talking about growth of population, this is the another concept altogether. ग्रोथ का मतलब ही हमने पढ़ा था, ग्रोथ है तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है. तो ग्रोथ इज चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. कोई भी बदलाव ऊंच या नीच अगर किसी जगह में हो रहा है, चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर एरिया अर्लियर देयर वर 10 पीपल लिविंग एंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया देयर वर 20 पीपल लिविंग. यहाँ पे सरकार ने काफ़ी अच्छे से चीज़ें मैनेज करी, इंडस्ट्रीज़ बना दी, एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए इंसेंटिव्स दिए. अब ये यहाँ के 10 लोग थे जो 5 लोग यहाँ चले गए और यहाँ पे 20 से 25 हो.
तो दोनों जगह पे ग्रोथ हुई है, इधर इंक्रीज इन ग्रोथ हुआ है, इधर डिक्रीज इन ग्रोथ हुआ है. सो इट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज इट कैन बी पॉजिटिव. द रेट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. हम ग्रोथ रेट को हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में करते हैं. वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज पॉपुलेशन का जो ये चेंज है, जो ग्रोथ है, ये दो तरीके से हो सकता है. इट कैन बी नेचुरल एज वेल एज इट कैन बी इंड्यूस्ड. अभी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? नेचुरल का मतलब होता है नेचुरल कारणों से डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट कम हो गया, तो उसकी वजह से जो आपका पॉपुलेशन है वो मैनेज हो गया, दैट इज नेचुरल. एंड इंड्यूस्ड इज जब सरकार ने, आप लोग चले गए, माइग्रेशन हो गया, जैसे मैंने बताया था इस जगह से लोग इस जगह पे चले गए, तो दैट वाज समथिंग इंड्यूस्ड. सरकार ने इधर कुछ डेवलपमेंट करी थी जिसके कारण यहाँ से लोग उठकर यहाँ चले गए, सो दैट वाज इंड्यूस्ड. इस बुक में वी विल फोकस ऑन नेचुरल, इस चैप्टर में वी विल फोकस ऑन नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रॉब्ली इन द अपकमिंग चैप्टर्स लाइक माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट हम देखेंगे किस तरह से जो इंड्यूस्ड फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है. सो डिकेडल मतलब 10 साल की, और एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया की पॉपुलेशन का काफ़ी हाई है, मतलब हम काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और बिल्कुल भी रुकावट नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से वी आर इंक्रीजिंग एट अ ग्रोथ रेट ऑफ 1.64% एवरी ईयर. अगर देखा जाए पिछले एक सेंचुरी की अगर हम स्टडी करते हैं तो इंडिया में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, अप्स एंड डाउन्स हमने देखने को मिला. एक ट्रेंड हमने स्टडी किया है अबाउट द इंडियन टोटल पॉपुलेशन. एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल के टर्म्स में भी आप देख सकते हो कि किस तरह से 1901 में पॉपुलेशन वाज 5%, नेगेटिव हो गया, उसके बाद 11%, 14%, 13% एंड देन इट्स इंक्रीजिंग, अब थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जा रहा है. सो हाउ इट इज़ डिफरेंट. पॉपुलेशन डबलिंग टाइम. पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है? इट इज़ अ टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन. कोई भी, मतलब मान लो यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं और यहाँ पे जो कुछ रह रहे हैं, जितना टाइम यहाँ की जनता को डबल होने में लग जाएगा, मतलब इफ दे आर टेकिंग 5 years टू रीच फ्रॉम 10 to 20, उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन डबलिंग टाइम एंड दैट वुड बी योर 5 years. सो नाउ इंडिया की जो पूरा पॉपुलेशन का स्टडी है दैट इज डिवाइडेड इन 4 phases, phase 1, phase 2, phase 3 एंड phase 4. इन चारों फेजेस में मैं आपको कुछ सब पॉइंट्स बताऊंगी. पहले तो ये फेज है ही, इन फेजेस के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. फर्स्ट इज ईयर, कौन से साल से कौन से साल तक थी ये. सेकेंड, एक्चुअली में क्या हुआ, हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, ये जो एनालिसिस है ये करना है. थर्ड इज आपको ये देखना है कि ग्रोथ कैसा था, मेंटेन रहा, कम हुआ, एकदम से बहुत बड़ा, धीरे धीरे कम हो रहा है, दिस इज द एनालिसिस. एंड फोर्थ पॉइंट इज इन सारी चीज़ों के पीछे रीजंस क्या कह रहे हैं. तो इन चारों फेजेस में आपको हर फेज का 4-4 पॉइंट्स बनाना है. So let's go with the first point, that is your phase 1. फेज 1 का जो पीरियड था ये 1901 से लेकर 1921 तक था, और इसको हम वो पीरियड बोलते हैं विच इज जहाँ पे स्टैग्नेंट, अटक गया था, स्टेशनरी, फिक्स हो गई थी, हिल नहीं रही थी, ग्रोथ रुक गई थी. नाउ अगेन इन इंग्लिश दैट दिस पीरियड इज फ्रॉम 1901 to 1921. And this period was of stagnation. Stagnation means something which is still and not moving, neither going up nor going down. So the population in this period was fixed, got stuck. And this was because since in this period growth rate was very low, the growth rate बहुत ज़्यादा high नहीं था. Even in the year gap of 1911 से 21 के बीच में हमने negative growth rate भी witness किया. अभी आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बताया था कि स्टैग्नेट होता है, तो अभी नेगेटिव कैसे हो गया. हमने टोटल ऑल बताया है, ओवरऑल, कि 21 साल के एनालिसिस में कुछ खास ऊपर नीचे नहीं हुआ है. बट अगर हम और एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करने लग जाएंगे ईयरली और डेकेडल, एनुअल और डेकेडल बेसिस पे, सो देयर कुड बी वेरिएशंस. Similarly, they are telling you that from year 1911 to 1921, there was a negative growth in our population, which was due to high birth rate and high death rate, keeping the rate of increase very low. इसकी वजह से जो increase था वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था.
ये सब क्यों हो रहा था? रीजंस आर वेरी क्लियर. पॉवर्टी थी, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं अच्छा था, मेडिकल सर्विसेज अच्छी नहीं थी, पीपल वर नॉट वेरी लिटरेट, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड नहीं मिल रहा था सबको, बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल नहीं थी लोगों के पास, एंड वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई डेथ रेट एंड हाई बर्थ. और इन सारी चीज़ों की वजह से ही जो डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों काफ़ी हाई थे, एंड जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन थी वो स्टेशनरी फेज में थी. सो आई टोल्ड यू कि हम इसमें से 4 पॉइंट निकालेंगे. फर्स्ट इज योर ईयर विच वॉज फ्रॉम 1901 to 1921. Yes. Second was the phase. This was a phase of stagnation or stationary growth of population, which means it was not either increasing nor decreasing. Third, it was a phase of high birth rate and high death rate, and these high birth rate and death rate के वजह से the relative growth of population was very low. And fourth is the reasons: poor health care, medical services, illiteracy, poverty, and improper distribution of food and unavailability of basic necessities. So अब सबके लिए हमें समझें. Next is your phase 2, which starts from 1921 to 1951. This period is generally referred to as steady growth of population, जिसका मतलब आराम से धीरे धीरे there was a growth but not a sudden growth but a gradual growth, धीरे धीरे करके मूव कर रही थी. और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ओवरऑल देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा, और हमारा हेल्थ केयर बेटर हो गया था, हमारी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ गॉट बेटर थ्रू आउट द कंट्री, ब्रॉट डाउन द मोर्टालिटी रेट. मोर्टालिटी रेट जो था, मोर्टालिटी रेट क्या होता है? मोर्टालिटी रेट मरने की संख्या जो होती है, इट ऑल्सो केम डाउन. एंड द क्रूड बर्थ रेट, इस याद रखना है इस टाइम पे जो बर्थ रेट था इट वाज स्टिल वेरी हाई, एंड इसकी वजह से हाई ग्रोथ रेट हो गया. डेथ रेट थोड़ा कंट्रोल हुआ क्योंकि देखा ना हमने कि हेल्थ केयर थोड़ा सा बेटर हो गया था, तो जिसकी वजह से डेथ रेट कंट्रोल हो गया, बट बर्थ रेट वाज स्टिल वेरी हाई. एंड दिस इज द रीज़न कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन थी इट वाज गेटिंग पॉजिटिव और स्टेडीली नहीं बढ़ रही थी. नाउ नोट वन थिंग कि डेथ रेट कंट्रोल हुआ था, बर्थ रेट कंट्रोल नहीं हुआ था. तो लोग अभी भी मर रहे थे और लोग पैदा भी हो रहे थे. तो दिस वे देयर वाज अ स्टेडी ग्रेजुअल इंक्रीज. तो यहाँ से हमने 4 पॉइंट क्या निकाले? 1921 to 1951 the growth was steady and gradual, step by step in a processual manner. Third, the crude death rate decreased, but crude birth rate was still very high, and that is the reason that the growth rate was high. And fourth, what were the reasons? Improvement in healthcare sectors, improvement in public distribution system, in better transport and communication system. All these things were good. लास्ट में इन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, इंडिया के केस में जो ग्रोथ हो रही थी ये बहुत सरप्राइजिंगली गुड थी, क्योंकि इन दी वर्ल्ड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था 1920 में, और इंडिया की इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से, हमारी लेबर की कैपेबिलिटी की वजह से वी वर एक्चुअली ग्रोइंग व्हेन द वर्ल्ड वाज इन अ क्राइसिस सिचुएशन. Next is phase 3, that is the decades which were from 1951 to 1981. यहाँ पे हुआ पॉपुलेशन का धमाका, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, विच मीन्स एकदम से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई और रैपिड, अचानक से मोर्टेलिटी रेट बहुत गिर गया, हाई फर्टिलिटी रेट हो गया, पॉपुलेशन देवर लाइक बर्थ रेट्स वर वेरी हाई, एनुअल ग्रोथ रेट 2.2% हो गया था इन दिस पीरियड. और ये सब क्यों हो रहा था? हमारी प्लानिंग प्रोसेस काफ़ी अच्छी हो गई थी, हमारे लिविंग कंडीशंस अच्छे हो गए थे, हाई नेचुरल इंक्रीज, हायर ग्रोथ रेट हो गया था. इंटरनेशनल माइग्रेशन की वजह से, जैसे कि तिब्बतियंस, बांग्लादेशीज, नेपालीज, ये सारी भी इस टाइम पे इंडिया में, आप याद करो 1971-72 में हमारा जो वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, उस टाइम पे हमने बांग्लादेश को फ्री कराया था, बट देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम बांग्लादेश हु केम टू इंडिया एज रिफ्यूजीज. सो दैट इज़ हाउ हमारा पॉपुलेशन एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ. दिस वाज बिकॉज ऑफ पॉलिसीज एंड एवरीथिंग. इस केस में हम 4 पॉइंट्स निकालते हैं. 1951 to 1981
there was a population explosion in India because of rapid fall in mortality rate and high fertility rate. लोग मर नहीं रहे थे पर पैदा होते जा रहे थे, वो भी बहुत हाई रेट पे. ग्रोथ रेट हमारा 2.2% हो गया था. हाई नेचुरल इंक्रीज था, मतलब नेचुरली इंक्रीज ज़्यादा था और ग्रोथ रेट भी बहुत ज़्यादा था. और रीज़न क्या थे? हमारी सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज़, इम्प्रूवमेंट इन कंडीशंस ऑफ पीपल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज. फेज़ 4 इट इज़ इन द पोस्ट 19, अभी 1981 के बाद से अगर हम आज तक का डेटा टिल प्रेजेंट देखें तो जो ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री हैज़ ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन्ड हाई, काफ़ी हाई रहा है, बट इट इज़ नाउ स्टार्टिंग टू डिक्लाइन. एंड विद कोविड हमने देखा a lot of people lost their lives, so there must be a decline in the growth rate. इस टाइम में जो एक कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हो जाते हैं कंट्रीज़ में जिनकी वजह से मेजर वर्ल्ड में ही आपको थोड़ा सा डिक्लाइन इन पॉपुलेशन दिखेगा इन दीज एरियाज बिकॉज ऑफ कोविड इन दीज इन दी वर्ल्ड थ्रू आउट. सो इंडिया अगेन suffered the same plight. So country's population remained high. It is gradually declining, which is because the crude birth rate is controlling. It is going down. This was because there was increased age of marriage. People who were getting married at 13 or 14 years, they were giving birth to 5 to 6 children. And now when they're getting married at 26 or 27, they generally give birth to 2 or maximum 3 children. So this is one way which control the population. Improved quality of life, better healthcare, education of females was a very important thing because females are used for fertile reproduction, and when they are not educated, they have no opinion. They don't have any say in the matters of reproducing or giving birth to a child. But with female education increase in that, women could keep an agency over their decisions, whether they want to give a birth or they do not want to. So this surely improved the condition. So year देखना है, birth rate कम हुआ है, reasons were marriage का rate कम होना, life quality अच्छा होना, females की education होना, and population ओवरऑल देखें तो बढ़ रहा था, अब थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन. दिस इज़ इट. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलती है कि बाय 2025 इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1350 मिलियन तक पहुंच सकती है. आई डोंट डाउट इट. सो द एनालिसिस डन सो फार ये एवरेज ग्रोथ रेट का है, बट बहुत वेरिएशंस होते हैं. हमने जो भी अभी तक एनालिसिस किया, मैंने जैसे आपको बताया, जब हम 30 साल का या फॉर एग्जांपल जैसे हमने 51 से 81, हम 30 इयर्स की जब डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम एक एवरेज पढ़ रहे हैं कि 30 साल में ओवरऑल क्या हुआ. जैसे आज से आप 10 साल बाद पढ़ोगे तो आप देखोगे कि 1-2 साल थोड़ी पॉपुलेशन कम हुई बट फिर वापस से बढ़ गई. तो अगर 10 साल बाद पढ़ने वाले के लिए ये एक एवरेज स्टडी हो जाएगी. बट अगर आप स्पेसिफिक स्टडी को करना शुरू करोगे, ईयर वाइज करोगे, तो आपको और ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगी इन दी डेटा. सो दैट्स इट. Tomorrow we will start from regional variation and population growth. I would like to tell you again, if there are any questions, doubts, queries, please feel free to comment. Yesterday there was some glitch, I could not turn on the comment section. Today it is open to you all, and thank you for watching. If you like the session, please like it, comment and share. So I'm being a particular YouTuber, but okay, you can do that. So that's it. 2 important things. One is, at the end of this video there will be a question like there was in the yesterday's class, MCQs. Another thing is maps. In this book you have a lot of maps and a lot of factual data which you will have to learn or remember by your heart. सो विच इंक्लूड्स, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग स्टेट्स का डेटा अलग है, डेंसिटी में अलग है, ग्रोथ में अलग है, कंपोजिशन में अलग हो जाएगा. सो फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न द मैप्स
and details. For example, this is the map of your distribution. तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये जो ये बेल्ट वाला रीजन है, हाउ इज इट वेरी पॉपुलेटेड. स्पेसिफिकली आप दिल्ली को देखो, एकदम इट इज़ वेरी डार्क इन कलर. एंड देन दीज पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर and Arunachal Pradesh, which are very low. So again, there is a map of density and growth. So what why I'm telling you all this is that you have to maintain a notebook in which you will be making all these maps so that it is better understandable for you. एंड जब आप ये मैप्स मार्क करोगे तो उसमें आप स्टेट्स भी मार्क करना. जहाँ पे आप बहुत डार्क शेड कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि उस जगह का नाम क्या है. So that's it. Have a nice day. Please, again, I would like to tell you, take care of you and your family.